Students, good afternoon. I am Khagesh Kumar of Patliputra Central School, the teacher of English language. Today, I am going to teach you about verb in grammar portion. Verb is the soul of sentence. What is verb? As we know, a verb is an action or position of a subject. You may say in the another sense, verb is a doing word. For example, Mohan plays cricket. Then after, without verb, we can't make a sentence. So my dear students, this session which is related for verb is very important. So my dear student, you will watch it carefully and listen it carefully. After that, if verb is divided on the basis of its formation found into two forms. First form is finite verb and second form is non-finite verbs. What is finite verb? A verb that changes its form according to the number and tenses of its subject is called finite verb. Some example which you have seen clearly on the screen. I want to play, he wants to play, he wanted to play. प्यारे बच्चों, तुम इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में देख रहे हो कि want, wants, wanted. Which word is underlined is changed according to the number. Okay, students. And what is non-finite verb? A verb that does not change its form according to the number and tenses of its subject is called non-finite verb. Examples: I want to play, he wants to play, he wanted to play. Underline words to play and to play, which can't change. These type of verbs is non-finite verb. Then after, if verb is divided on the basis of its object presence found into two forms. One is transitive verb, another is untransitive verb. First is transitive verb, second is intransitive verb. What is transitive verb? A verb with its object in sentence is called transitive verb. Example: Ram is writing a letter. Intransitive verb, a verb without its object in sentence is called intransitive verb. प्यारे बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया को कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया को कहते हैं. वह वर्ब विथ इट्स ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, वाक्यों में कर्म के साथ रहता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. और वह वर्ब जो सेंटेंस में बिना कर्म के रहता है, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल: he laughs loudly. If verb is divided on the basis of its uses found into two forms. First is principal verb, main verbs or action verbs, doing verbs and leading verbs, which you have seen clearly on the screen. ये सभी क्रिया, चाहे आप प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं, मेन वर्ब कह सकते हैं, एक्शन वर्ब कह सकते हैं, डूइंग वर्ब्स कह सकते हैं और लीडिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं. और दूसरा सेकेंड इज ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं.
असिस्टेंट वर्ब भी कह सकते हैं, सबोर्डिनेट वर्ब भी कह सकते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल वर्ब? ए वर्ब दैट शोज द रियल एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। राम, some example, Ram is dancing, Ram plays cricket। प्यारे बच्चों, ध्यान रहे कि इसकी संख्या असीमित होती है, यानी मेन वर्ब की संख्या जो है वह असीमित रहती है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी आप कहते हैं, उसकी संख्या 24 है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज 24, जो कि मैं आगे आपको और समझा रहा हूँ। ध्यान रहे कि किसी वाक्य में किसी भी तरह का एकमात्र वर्ब हो तो उसे प्रिंसिपल वर्ब के ही श्रेणी में रखा जाता है। नाउ व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब? ए वर्ब दैट वर्क्स एज द असिस्टेंट ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इन सेंटेंस is called auxiliary verb. Example is Ram is dancing. Underlined word is is auxiliary verb. Ram is dancing में जो is को अंडरलाइन किया गया है वह is auxiliary verb। ध्यान रहे कि वाक्य में बिना ध्यान रहे कि किसी भी वाक्य में प्रिंसिपल वर्ब के ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है। अंग्रेजी ग्रामर के तहत ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या मात्र 24 होती है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स। स्ट्रक्चर के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं वह 4 फॉर्म में रहता है। फर्स्ट फॉर्म जो होता है बी फॉर्म, जिसे बी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। सेकेंड इज डू ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड इज हैव ऑक्सिलरी वर्ब, फोर्थ इज मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। बी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप आप इसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। डू वर्ब का फॉर्म देख सकते हैं, हैव वर्ब का फॉर्म्स देख सकते हैं। ये मॉडल्स वर्ब्स जो हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट और मस्ट। जैसा कि नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है। बी फॉर्म का वर्ब, डू फॉर्म का वर्ब और हैव फॉर्म का वर्ब जो आपने स्क्रीन पे देख रहा है। बी फॉर्म का वर्ब MREB ये फर्स्ट फॉर्म में आता है। वाज वेयर सेकेंड फॉर्म में आता है। बीन थर्ड फॉर्म में आता है। अब बीइंग फोर्थ फॉर्म में आता है। इज फिफ्थ फॉर्म में आता है। यह वर्ब सहायक क्रिया के तरह भी काम करता है और मेन क्रिया के तरह भी काम करता है। प्यारे बच्चों, इसीलिए जब मेन वर्ब के तरह काम करता है तो मेन वर्ब का रूप होते हैं, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ब के 5 रूप होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। उसी तरह बी फॉर्म का वर्ब जब सब्जेक्ट की बी फॉर्म का वर्ब जब मेन वर्ब के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं उसका फॉर्म आवश्यक है, फॉर्म होता है। इसलिए बी फॉर्म का वर्ब देखिए, डू फॉर्म का डू, डिड, डन, डूइंग, डज। हैव फॉर्म का वर्ब हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। मॉडल्स जो कि आपको मैंने बता दिया और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यह टोटल ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसकी संख्या 24 है और मेन वर्ब असीमित होती है। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में
फिर हम आपको नेक्स्ट बात बताएंगे। प्यारे बच्चों, एक चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं इसको आप नोट अवश्य बनाइएगा। वर्ब का टॉपिक देकर आप इसे लिखिएगा। इससे रिलेटेड हम वर्क भी डालेंगे आपके क्लास में। यह स्टैंडर्ड 5 और 6 के लिए है। धन्यवाद।